In this video I will talk about what is the difference between the evaporation and boiling, and also the some uh, questions. So first I will talk about for what is the difference between evaporation and boiling. So some points are mentioned here in case of evaporation and also in case of boiling. So look at the first case, first point in evaporation. It is given here, it occurs at all temperature, that is it is a spontaneous process. It occurs at all temperature means there will no any requirement for the temperature. It can occur at a room temperature also. Clear? When we increase the temperature, the rate of evaporation increases, you know very well, but there will be no any need for the temperature. So here the word the statement is given that it occurs at all temperature and it is a spontaneous process. Clear? The process which occurs by itself, there will be no any need to carry out the processes, so that processes are called as spontaneous process. The second point is it occurs only at the surface of the liquid. That means evaporation occurs at the surface of liquid. I will talk about for this point in just after 5 minutes. Third point, it is an exothermic process. The two things you have to consider, exothermic and endothermic. When heat is evolved during any process, then you can say that the process is exothermic. Clear? And when heat is absorbed during a process, then you can say here that the process is endothermic. So you know that in evaporation the process or the releasing of vapor occurs by itself, so it is an exothermic process. Clear? It causes cooling effect. Evaporation causes cooling effect. You can see a number of questions related to this point. Now I will talk about for the boiling, which is also named as vaporization. The first point is it occurs at a particular temperature. For example, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. That means this is a particular, there is a specific value of the boiling point for the liquid. Clear? So it occurs at a particular temperature. Second point, it is a bulk phenomenon. I will just discuss with this and this one just after 5 minutes. Third one, it is an endothermic process. Here the process is exothermic, that means the heat releases during the process, and here it is an endothermic process. Why the word is used here endothermic? Because you know that the boiling occurs when the liquid absorb heat. Clear? So when any substance or any process will occur after absorbing the heat, then you will say that it is an endothermic process. Clear? And fourth point is it does not causes any cooling effect, but here it causes the cooling effect. Now come on, what is the surface phenomenon and bulk phenomenon? ओके, आइए अब हम बात करते हैं कि इवापोरेशन जो है और जो बॉइलिंग है. अभी आपने देखा कि इवापोरेशन को बताया गया था, इवापोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेनन है, यानी ये सरफेस पर होता है, और जो बॉइलिंग है वो बल्क फेनोमेनन है, यानी बल्क पर होता है. अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये बल्क फेनोमेनन और सरफेस फेनोमेनन है क्या. ठीक है, चलिए. जैसे मैंने ये एक बीकर आप देख रहे हो, ये बीकर, इस बीकर में मैंने वाटर को रखा है. इस वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनको मैंने दो पार्ट्स में दिखाया है, यानी दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं. एक जो एकदम सबसे ऊपर वाला जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? और एक जो होता है जो अंदर की तरफ होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल तो सब है. क्लियर? इसमें सब के सब वाटर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ है उनको हम कहेंगे सरफेस वाटर मॉलिक्यूल, और जो अंदर की तरफ है उनको हम कहेंगे बल्क वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? अब यहां पर आप देख रहे हो कि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है,
सॉलिड में भी होता है, लिक्विड सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड की बात हम कर रहे हैं तो लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा लेकिन होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो अंदर की तरफ से, जो नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो नीचे की तरफ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं और एक सिंगल डायरेक्शन। तो ये सरफेस आप देख रहे हो कि सरफेस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो मतलब उनका एक तरफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और एक तरफ सिंगल डायरेक्शन में अट्रैक्शन होने की वजह से वहां पर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक डायरेक्शन में कहीं अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो वहां टेंशन क्रिएट होगा, और चूंकि ये टेंशन कहां क्रिएट हो रहा है, सरफेस पर, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, सरफेस टेंशन। क्लियर। यानी इवापोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना क्यों है, क्योंकि वहां पर एक टेंशन काम करता है और वो टेंशन का नाम क्या है, सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन की वजह से पहले जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पहले सरफेस से निकलते हैं। ठीक है ना। तब जब सरफेस से निकलेंगे तो वो प्रोसेस इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन इसीलिए जो है वो कैसा फिनोमेनन हो गया, सरफेस फिनोमेनन। क्लियर है। दूसरी बात, अगर हम बल्क की बात करें तो बल्क में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता है बल्कि हर एक डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर। और हर एक डायरेक्शन में होने की वजह से पहले जब हम इसको हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जब इसको हीट करोगे तो हीट जब हम करते हैं तो पहले सरफेस के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और फिर इस हीट को एब्जॉर्ब करके जो बल्क वाटर मॉलिक्यूल है इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ब्रेक जब होगा तो जब ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तब जाकर वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो धीरे धीरे यहाँ पर जो बॉइलिंग जो आप जानते हो बॉयल होना वाटर शुरू करेगा, और यही इसी को ब्रेक होने में काफी समय लगता है, और इसको ब्रेक होने में जो समय लगता है वो टेम्परेचर के रेंज में या टेम्परेचर के स्केल में हम मेजर करते हैं, और वही उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लिक्विड का कंसीडर करते हैं। तो शायद आपको अब ये क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है, वी वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर सीजन, व्हाई, यानी गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। ये क्वेश्चन आपका इवापोरेशन से रिलेटेड है, आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया भी था, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई पल्सेस आर नॉट इजली कुक्ड एट माउंटेन लेवल। इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको आंसर बताना है। एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।